Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we are going to revise chapter number 5. Okay, first of all, what is set? Set is a group or a collection of objects or numbers. Usually they are symbolized by uppercase letters. सेट को हम जब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक या नंबर्स को कलेक्ट करते हैं उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, सो दिस इज कॉल्ड सेट. सेट को हम अपर केस लेटर से इनको डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो नंबर्स होते हैं जो हम सेट में लिखते हैं वो उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, A is a set and A, B, D, 2, 4, these are elements of set A. Similarly, set B is a set and math, religion, literature, computer and science all are the element of set B. So set is a collection of well-defined objects or numbers. Now move on. What different types of sets? We have different types of sets. First of all, natural numbers. These are all the counting numbers. They are starting from 1. Natural number denoted by capital letter N. Natural number को हम N से denote करते हैं. ये 1 से start होते हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. So this is called the natural numbers. Second one है the set of whole numbers. Whole numbers 0 से start होते हैं, इसे हम denote करते हैं W से. W is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. Number 3, set of prime numbers. Prime numbers वो numbers होते हैं जो अपने ऊपर या 1 पे divide होते हैं, यानी कि वो numbers जिनके सिर्फ 2 factors होते हैं, 1 and itself. So वो numbers जो 1 पे या अपने ही table पे divide होते हैं वो कहलाते हैं prime numbers. इनको हम denote करते हैं P से. 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. These all are the prime numbers. Fourth है set of integers. Integers होते हैं positive and negative. Both positive and negative numbers are called integers and they are starting from 0. 0 से start होते हैं, हम इन्हें capital letter Z से denote करते हैं. 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and so on. Even numbers. Even numbers are the number which can be divisible on 2. जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं. प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस दोनों होते हैं, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन. दीज आर कॉल्ड इवन नंबर्स एंड दीज आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर E. नाउ व्हाट इज ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स द नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल ऑन 2, जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते. दीज आर कॉल्ड odd numbers and odd numbers are denoted by O. O is equals to plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5 and so on. These are called odd numbers. ये वो sets हैं जो हम use करते हैं. Natural numbers, whole numbers, prime numbers, set of integers, even numbers and odd numbers. Okay, now what is union of sets? The union of set A and B denoted A union B is a set of all elements that are in the set A or set B or in both A and B. Union को हम U से denote करते हैं. Union में क्या होता है कि अगर हम दो sets A and B का and we are going to find the union of set A and B, so we will write all the elements of set A and set B. Set जब हम union find करते हैं तो जो रिजल्ट हमारे पास, जो रिजल्टेंट सेट आता है या जो न्यू सेट हमारे पास बनता है उसमें दोनों सेट्स आते हैं, दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हम लिखते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सेट बी है 2, 4, 6, 8, 10. सो जो हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे सो वो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10. सो दिस इज द यूनियन. यूनियन का मतलब ये है कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स जो सेट ए में भी हों और सेट बी में भी हों उन्हें हम कंबाइन करके एक सेट में लिखते हैं. वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स. और इसको हम जो है यू से डिनोट करते हैं यूनियन ऑफ सेट को. अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 रिपीट हो रहा तो उसे हम 1 टाइम ही लिखते हैं, 2 टाइम्स उसे नहीं लिखते हैं.
So this is called the union of set. Intersection, what is the intersection of sets? Intersection में हम इसको हम डिनोट करते हैं, this is the sign of intersection. उल्टा यू कह सकते हैं आप इसे, this is the sign of intersection. intersection में हम क्या करते हैं कि हम common elements जब find करते हैं, so उसे हम कहते हैं intersection of set. intersection में for example let's suppose 1 2 3 4 5 6 and b is equals to 4 5 6 7 8. so a intersection b जो हमारे पास रिजल्टेंट सेट आएगा वो होगा, दोनों में 4 है, 4 कॉमन है, सो 4 एंड 5. दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी. तो रिजल्टेंट सेट आएगा हमारे पास, उसमें एलिमेंट होंगे 4 एंड 5, क्योंकि हम इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेते हैं और इसका सेट, इसका जो साइन होता है वो इस तरह होता है उल्टा यू. दिस इज द साइन ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट? डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? डिफरेंस का मतलब होता है, डिफरेंस को हम कहते हैं a माइनस बी या b माइनस ए भी हम फाइंड कर सकते हैं. डिफरेंस में हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो पहले सेट में हो और दूसरे सेट में ना हो. The difference of two sets A and B symbolized A minus B is a set of elements that belongs to set A but not set B. अगर हम A minus B फाइंड कर रहे हैं तो हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेट A में होंगे और B में नहीं होंगे. इसी तरह अगर हम b माइनस ए लिखेंगे, फाइंड कर रहे हैं, तो हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो b में हो और a में ना हो. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास a है 2 4 6 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. सो a माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे? अब a में देखें, a माइनस बी 2 a में है, b में भी है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे. 4 a में है, b में है, दोनों में है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे. सिमिलरली 6 a में है, सेट b में a में है, b में नहीं है, सो a माइनस बी इज इक्वल टू 6. सिर्फ 6 इसका जो आंसर आएगा a माइनस बी का, उसमें सिर्फ 6 होगा, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स जो सेट a में है वो सेट b में भी हैं. सो हम, क्योंकि हम a माइनस बी को कर रहे हैं फाइंड आउट, तो हम a को b से कंपेयर करेंगे, b को a से नहीं. वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट a में होंगे और सेट b में नहीं होंगे. और अगर हम b माइनस ए फाइंड करें तो हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट b में हो और a में ना हो. और जैसे 1 यहाँ पे b में है, a में नहीं है, तो हम 1 लिख लेंगे. सिमिलरली 2 यहाँ है, 2 a में भी है, तो हम 2 नहीं लिखेंगे. सिमिलरली 3 यहाँ है, 3 सेट a में नहीं है, तो हम 3 लिखेंगे. 4 यहाँ पे है, b में, a में भी है, सो हम इसे स्किप कर देंगे. 5 सेट b में है और सेट a में नहीं है, सो हम 5 लिखेंगे. तो जो हमारे पास b माइनस ए का सेट आएगा उसके एलिमेंट्स होंगे 1 3 एंड 5. डिफरेंस में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो हमारे पास पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो. अब a माइनस बी में वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो a में हो और b में ना हो, और b माइनस ए में वो लिखेंगे जो b में हो और a में ना हो. सो हम पहले सेट को दूसरे से कंपेयर करते हैं, सेकंड को हम फर्स्ट सेट से कंपेयर नहीं करते हैं. थैंक यू.